Hello students, a very good evening to each and every one of you. As you all know, today Central Board of Secondary Education conducted Term 1 examinations for class 12th for the subject English. There was no change in set number and code number. The question paper code and set number, it was same for all the students, and today in this video we are going to unravel the correct answers of this question paper. You can easily estimate, you can easily come to know your marks. So I expect each and every one of you, as you all must be having your own question paper, I am going to discuss each and every question, but I don't want to make this video lengthy. So the questions which are important, I will discuss, I will analyze the answers of only those questions. Otherwise, I will tell the correct answers, because the marking scheme has also been issued by the CBSE. So the answers which I am telling you in this video for this question paper, they are the correct answers. Those answers adhere to the marking scheme which has been issued by the CBSE. There nothing is fake over here. You all can understand, you all can tick the correct answer, and after that you can calculate your marks. So without wasting much of time, let's begin this video. As you all know, the question paper was divided into three sections. The first section has, the first section was of reading section that had two passages. In the very first passage, question number 1 to 10, I hope you all must have read the instructions very carefully. In the first passage, there were total number of 10 questions and the students were supposed to attempt 8 questions out of 10. In the second passage, there were total number of 8 questions in which you were supposed to attempt 6 questions out of 8. This was all about reading section, which means section A. Then if we come to section B, which is writing section, it had two parts. In the very first part, that was question number 19 to 23. 19 to 23, there were total number of 5 questions in which you were supposed to attempt 4 questions. And in part B of writing section, means question number 24 to 30, there were total number of 7 questions from 24 to 30. Out of total number of 7 questions, you were supposed to attempt 6 questions. And at last, section C literature, from question number 31 to 60, there were total number of 30 questions in literature section, and out of 30 questions, you were supposed to attempt any 26 questions. बेटा यहाँ पर 31 to 60 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से 30 में से कोई भी 26 अटेम्प्ट करने थे. तो OMR की गाइडलाइंस, ये सारी चीजें आपको पहले भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने शेयर जरूर किया होगा सारी चीजें. वी विल नॉट ड्वेल ऑन दैट. In this video, we will discuss only the correct answers of this question paper adhering to the marking scheme which has been issued by the CBSE. So let's come to section A, reading. Question number 1. I will not read out the whole passage because it will take a lot of time. There is no time for the reason and analysis. The marking scheme which has been issued by the CBSE, I will stick to that only. बाद में CBSE क्या उसमें चेंज करती है या नहीं करती, बिकॉज आपकी आंसर शीट्स उसी के अकॉर्डिंग इवेल्युएट की जाएंगी. सो हम उस पर स्टिक करेंगे, उसी पर हम लोग फिक्स्ड रहेंगे. CBSE ने जो मार्किंग स्कीम, जो आंसर्स इशू किए हैं, क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा एक जगह एरर भी था जहां पर अंडरलाइन, फ्रेज को अंडरलाइन नहीं किया गया था. बट वहां पर टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना होगा वो CBSE करेगा. या तो सारे बच्चों को वो जो 1 मार्क्स हैं एरर के, वो कॉमन मार्क्स दे दिए जाएंगे. जो भी डिसीजन होगा दैट इज रिजर्व्ड बाय CBSE. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 विच इज रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर गेव हिम सोलेस ड्यूरिंग हिज बैड टाइम्स इन हिज कॉलेज डेज. यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, दैट ऑप्शन इज
Absolutely right. First question में question number 1, correct answer is C. Question number 2, the correct answer is A. Question number 2 का correct answer A होगा. Question number 3, correct answer is B. At the same time, you also tick the correct answer. If you have ticked the correct answer in the board examination, you are brilliant. But if not, please tick the correct or right answer so that later on you can calculate your total marks. So question number 3, the right answer is, the right option is B. Then we come to question number 4, the correct answer is C. Correct option is C. Question number 4, C. Question number 5, again C. Question number 5, the correct option is C. Question number 6, the correct option is D. Question number 6, again I repeat, question number 6, the correct option is D. D for Delhi. Question number 7, correct option is again D. D for Delhi. Question number 7, correct option D. Question number 8, correct option is A. Question number 8, correct option A. Question number 9, again the correct option is B. Humility. Question number 9, the correct option is humility, B. And last question of first reading section, first passage, question number 10, the correct option is C. Question number 10, correct option is C. So I hope you have marked the right answer from 1 to 10. Then we come to second passage, passage number 2 and question number 11. यहां पर आपने आई थिंक इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो किया था. टोटल 8 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट करने थे. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें से आपको कॉज और इफेक्ट निकालना था, आई थिंक बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा था. कॉज आप अगर आप सी ऑप्शन को देखें, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं? रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं. बहुत क्लियरली ये मेंशन था. सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है सी. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन इज ए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसमें बच्चों को कुछ डाउट जरूर हो सकता है, पर सीबीएसई ने कुछ बच्चों को लग सकता है बी यहां पर राइट ऑप्शन है. बट द मार्किंग स्कीम व्हिच हैज बीन इशूड बाय सीबीएसई, इट इज शोइंग द आंसर ए, जिसमें 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 13, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Urbanization leads to deterioration of air quality. Question number 14, correct option B. Question number 15, the right answer, the right option is C. Question number 15, right option is C. Question number 16, correct option is B. 16 का correct option है. Question number 16 का correct option है B. अब आप देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में 2 हैं. एक विजुअली इंपेयर्ड वीआई कैंडिडेट्स जो थे, जिनको विजुअली जो इंपेयर्ड थे, देखने में जिनको प्रॉब्लम होती थी, उनको नीचे वाला करना था 16 का. फिर 17, 18 आपको करने थे अगर आपने किया होगा तो. सो यहां पर मैंने 16 का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको मैंने बताया 16 का बी है. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17, द राइट ऑप्शन इज डी. 17 का राइट और करेक्ट आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट ऑप्शन इज सी. 18 का करेक्ट ऑप्शन सी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग सेक्शन. आई हैव told you the right options, right answers of the reading section from question number 1 to 18. I hope it's very much clear. Let's move to writing section. मैं थोड़ा सा आपको इसको एनालाइज भी करूंगा क्वेश्चंस को.
यहां पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 to 23, आपको इसमें से 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करने थे। अगर आपने क्वेश्चन बहुत क्लियरली पढ़ा हो, 19 क्वेश्चन, मिसेस सुजाता वांट्स टू रेंट आउट द फर्स्ट फ्लोर पोर्शन ऑफ हर हाउस, शी डिसाइड्स टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली, चूज द करेक्ट ऑप्शन अंडर विच हेडिंग शी कैन पब्लिश द एडवर्टीजमेंट। तो बहुत क्लियरली ये है, if you are giving your house, villa, flat, if somebody is giving his or her own house, villa or flat on rent, so it comes under classified advertisement, but category is to let, ये to let की कैटेगरी में आता है। आई थिंक यहां पर भी ऑप्शन बहुत क्लियर था, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी था। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट सुजाता नीड्स टू इंक्लूड इन हर एडवर्टीजमेंट। वो अपना हाउस रेंट पर दे रही है, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो वो इंक्लूड करेगी। तो यहां साइज ऑफ द हाउस, यस, इंक्लूड करना पड़ेगा। पीपल इन द नेबरहुड, आसपास के लोग, नहीं, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो सेकंड वाला मेंशन करना जरूरी नहीं है। लोकेशन, यस ऑफ कोर्स लोकेशन मेंशन होता है। अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज बिल्कुल मेंशन होगा। डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो रेल स्टेशन जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, हर एडवर्टीजमेंट का, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अगर जब भी आप लिख रहे हो कोई भी हो, उसमें एट लास्ट यू मेंशन द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। यानी यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा भाई साहब, वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विनीता इज द हेड गर्ल ऑफ गांधी मेमोरियल स्कूल नागपुर। शी इज आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अबाउट अ वर्कशॉप ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, इसमें सबसे एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा। Question number 21, select the option that best justifies the title for the notice. यहां पर option number C is absolutely correct. Stress management workshop for class 12 students. So option C is correct. 21 में C। अब आते हैं 22 में, जिसमें पूछा गया है कि इस नोटिस में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे। तो 22 में बेटा आपको B करेक्ट है। डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन। जब भी आप किसी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हो, होल्ड करते हो, वहां कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन जरूर इनवाइटेड होता है। तो यहां पर 22 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए नहीं है, टाइम टू रीच द वेन्यू, इसमें यहां पहुंचने वगैरह का नहीं है। उसका देखो थोड़ा सा आप कैसे रिफाइंड वे में आपको सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं 23 पर। हेल्प विनीता बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए 4 ऑप्शंस हैं। 23 में अगर आप देखिए बेटा, द वर्कशॉप विल बी, तो इसमें डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द वर्कशॉप विल बी बेनिफिशियल एंड विल टीच सम टेक्निक्स टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस। सो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इन्हीं ऑप्शंस को मार्क किया होगा, डार्कन किया होगा उसी सर्कल को। ओके, अब आते हैं पार्ट 4 पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन। रश्मि इज प्रेसिडेंट ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी क्लब. शी डिसाइड्स टू राइट एन आर्टिकल on the need to develop the habit of reading as she strongly feels it is fading among the present day students. वो चाहती है कि एक ऐसा आर्टिकल लिखे जो प्रमोट करे बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट को, इनकलकेट करें, बच्चे अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करें। इसमें पूछा गया है रश्मि के, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर रश्मिज आर्टिकल। अब देखिए बेटा 24 में द करेक्ट ऑप्शन इज B. 24, the correct option is B. Why reading is important? CBSE ने जो मार्किंग स्कीम दिया है, ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर B is correct. I hope you all have got it. Okay. आते हैं 25 पर। हेल्प रश्मि
कंप्लीट हर आइडियाज इन फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। सो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। 25 का बी है। एवरी बुक ओपन्स अप न्यू डायमेंशंस of thoughts for the reader. Reading books is one of the constructive habit. So यहां पर बेटा 25 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। 26 द राइट ऑप्शन इज सी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। 26 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी। 27 select the option that lists suitable steps to be taken to improve reading habits among the children. So 20 जो 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 27 का यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28 द राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 द राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30 द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट बी। इसमें पूछा गया है कि वेन एवर वी राइट एन आर्टिकल उसका टाइटल कैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर और अट्रैक्टिव ये तो होना चाहिए, आई कैचिंग बिल्कुल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू लिटरेचर सेक्शन इन विच फ्रॉम 31 to 60 total number of 30 questions were there and the students were supposed to go for 26 questions. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। What does the author try to convey by the expression being his own master? The passage is from Lost Spring. यहां पर आप देखिए पैसेज पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि when there was a conversation between Anish Jung and Mukesh, the writer was extremely delighted कि जहां पर she had seen millions of children who had resigned themselves to their fate, but Mukesh wanted to become his own master. He wanted to live a life of rectitude, fortitude, resilience आप कह सकते हो, determined था वो। तो यहां पर देखिए, यहां पर being his own master का क्या मतलब है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है सी, because Mukesh takes his own decisions. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। I hope I am very much clear. Question number 32, through the expression looking straight into my eyes, when Mukesh talks to Anish Jung, when he talks to the author, he looked very much confident, determined. He was looking straight into the eyes of the author and answering her questions. यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। Mukesh displayed his courage and determination in expressing his opinion. So question number 32, option D is correct. His dream, question number 33, his dream looms like a mirage. Mirage क्या है? Illusion है। While teaching this chapter, I had clearly explained this. After having a conversation, the author was doubtful whether his dream will come true or not. She thought that his dream is just like an illusion. It was just like a mirage. तो यहां पर देखो इसका क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिज ड्रीम इज इल्यूसिव एंड एल्यूसिव। यहां पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 33 का करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस। सेलेक्ट द इन्फ्रेंस इन रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है, they have no one to support them legally to get out of the situation. क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन अगर आप देखिए, बहुत सारे बच्चों ने इसको जरूर टिक किया होगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है। देयर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर एक्सप्लॉइटेड बाय unscrupulous businessmen, those crafty, cunning and vicious group of people
they are exploiting them because of their illiteracy and ignorance. So 34 का ऑप्शन B is correct. 34 B. 35 का क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर C is correct. आप देखिए बेटा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फैक्ट्स अबाउट फिरोजाबाद. इसमें से फिरोजाबाद के बारे में कौन से फैक्ट्स सही हैं? ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. यस, ये बुक की ही लाइन है, एनसीईआरटी बुक में ही है. द चिल्ड्रन वर्क एज मोटर मैकेनिक. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. चिल्ड्रन वर्क इन हैजर्डस सिचुएशन. आप देखो उसमें मेंशन है हैजर्ड्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्रीज. मोर देन 20,000 चिल्ड्रन दे आर इलीगली वर्किंग इन दोज इंडस्ट्रीज. डिंजी सेल्स विदाउट एनी सोर्स ऑफ एयर लाइट और वेंटिलेशन. तो ये तो करेक्ट है. फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ बैंगल मेकिंग, सॉरी कार मेकिंग, नहीं बैंगल मेकिंग है. तो यहां पर बेटा देखो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट हैं. सो 34 का C इज करेक्ट. 35 का ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 36. द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम डीप वाटर. व्हेन ऑथर वाज सिटिंग by the side of the pool waiting for the children to come, in the meantime a big bruiser boy came, a bully boy came, and he picked Douglas up and threw him into the deep end of the pool. ये वहीं का एक्सट्रैक्ट है. अब जरा आइए देखते हैं. What impression do you form about the narrator? नैरेटर कौन है? डगलस की बात कर रहा है. ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आप सबने एक्सट्रैक्ट को जरूर पढ़ा होगा. आफ्टर रीडिंग दिस एक्सट्रैक्ट, What impression do you form of the narrator? Means डगलस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? So in this question number 36, option number D is correct. Author lacks courage and confidence to enter the pool alone. वो अकेले नहीं जाना चाहता था, उसको डर था. 36 ऑप्शन नंबर D is correct. 37 में आते हैं. देखिए, the description of the big boy by the narrator is one of the. इसमें जिस तरीके से इफ यू रीड दिस एक्सट्रैक्ट केयरफुली, हो सकता है काफी बच्चों ने इसको गलत कर दिया हो क्वेश्चन नंबर 37 को, बट बेटा इफ यू रीड दिस एक्सट्रैक्ट वेरी केयरफुली आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ऑथर ने यहां पर बुल्ली बॉय के एडमरेशन में सारी बातें कही हैं. जो कहा है देखो, बिग ब्रूजर बॉय केम प्रोबेबली 18 years old, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वाज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ फिजिक अच्छी थी, मसल्स उसकी अच्छी थी, लेग्स आर्म्स में रिपलिंग मसल्स थे. कहीं ना कहीं उसको एडमायर कर रहा है, उसको उसकी फिजिक को अप्रिशिएट कर रहा है. सो यहां पर जो नैरेटर का डिस्क्रिप्शन जो दिया बुल्ली बॉय का, वो एक एडमरेशन वाला है, एप्रिसिएशन वाला है. सो 37 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38. Select the option that lists the probable reason for the big boy's behavior towards the narrator. Whatever decision was taken by the big bruiser boy, उसने उठाया, उसको डीप एंड में फेंक दिया, तो probable reason क्या रहा होगा? ठीक है, बिग बॉय के ऐसे बिहेवियर का उसने नैरेटर के साथ ऐसा क्यों किया? नैरेटर को ही क्यों प्रेफर किया? उसको उठाया और फेंक दिया. ऐसा बिहेवियर क्या रहा नैरेटर के लिए उसका? तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्योंकि दुबला पतला, द नैरेटर वाज स्किनी, उसके बहुत लीन एंड थिन हैंड्स और लेग्स थे, और अकेला पाया, बुल्ली बॉय ने उसको वहां पर अकेला पाया, दैट्स व्हाई ही डिड दैट. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. यहां पर कोई डराना, सरप्राइज देना, ऐसा कोई उसका मकसद नहीं था. यहां पर डी ऑप्शन इज करेक्ट. 38 का डी. क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखो, द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. जब भी हम लाइक्स एज का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो फिगर ऑफ स्पीच देखिए सिमिली होता है. ऑप्शन सिमिली इज करेक्ट. 39 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिमिली. द राइटिंग स्टाइल ऑफ द नरेटर इंडिकेट्स दैट द पैसेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर ए और एन. याद करिए, डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. While teaching this chapter, in the beginning I told my students, जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको पता भी होगा कि the chapter Deep Water, which is an extract from Men and Mountains,
इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ विलियम डगलस, जिसमें वो उन पलों को याद कर रहा है, अपने फोबिया को, अपने एवर्जन टू वाटर को हाईलाइट कर रहा है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सट्रैक्ट। What I want should not be confused with total inactivity. Keeping quiet का स्टैंजा है, in which the poet Pablo Neruda is making it crystal clear कि what he wants, कि readers confuse ना हो। वो अपनी बात को बहुत ही क्लैरिफिकेशन दे रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। वो बताना चाह रहा है कि he is not advocating total inactivity, he is not advocating inertia, he is not advocating absolute sluggishness। वो इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ही इज इन द सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन पर आते हैं। द पोएट्स इंटेंशन इन द फर्स्ट लाइन इज टू, पहली लाइन देखो, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल एक्टिविटी। मैं जो चाहता हूं, पोएट कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं। पोएट वांट्स पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन एंड पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहां पर देखो बेटा, ऑप्शन जो कोई वार्निंग नहीं दे रहा है, कोई राइट डायरेक्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, एक क्लैरिफाई कर रहा है वो। सो 41 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ही इज गिविंग, द पोएट इज गिविंग अ क्लैरिफिकेशन टू द रीडर्स। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 में आइए बेटा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टैंड ऑफ द पोएट इन एक्सप्रेशन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। उसी में आगे कहता है ना कि आई वॉन्ट नो एसोसिएशन विद डेथ, मौत से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ। इसमें क्या क्लियर करना चाह रहा है? सो 42 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिकॉज ही एश्योर्स दैट ही इज नॉट एडवोकेटिंग डेथ। द पोएट इज नॉट एडवोकेटिंग इनर्शिया, ही इज नॉट एडवोकेटिंग एब्सोल्यूट स्लगिशनेस। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एब्सोल्यूट स्लगिशनेस में चले जाएं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 का सी इज करेक्ट। 43, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहां पर देखो, कहना चाह रहा है कि नाउ अडेज पीपल आर सिंगल माइंडेड टूवर्ड्स लिविंग। हर आदमी जीना चाह रहा है, हर आदमी जीने के लिए काम कर रहा है, बट नो बडी इज फोकसिंग ऑन वेज ऑफ लिविंग। जीना तो सब चाहते हैं ना, बट हमें फोकस किस पर करना है? हाउ टू लिव आवर लाइफ, हाउ टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। लाइफ शुड बी लिव्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इट शुड बी मेड मीनिंगफुल। तो यहां पर देखिए, कोई रिग्रेट नहीं है, एनकरेज भी नहीं है, फ्रेंडली भी नहीं, क्रिटिकल है। यहां पर जो पोएट की टोन है इन 43, क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिकल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हु इज टू ब्लेम फॉर द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ? This extract is from Deep Water. The poet Pablo Neruda, he explains the sadness of human beings. The poet says that the main sadness of human beings that there is no understanding amongst them. They never understand themselves. It is human tendency that people want to know more and more about others, but they never try to know who they are. तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है 44 का, it is lack of understanding. Lack of understanding is the right answer. Question number 45. The tone of the poet in the expression, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. The poet says that the huge silence, which is the product of self-introspection, positive introspection, perhaps का मतलब वो श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऑप्टिमिज्म है कि शायद वो हमारी सैडनेस को दूर कर दे। तो यहां पर 45 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 45 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 46। दिस extract is from the chapter The Enemy by Pearl S. Buck.
और ये सीन तब का है बेटा when Dr. Sadao made a plan to help the enemy soldier to escape. When General Takema did not send his private assassins, Dr. Sadao made a plan to help the enemy soldier to escape successfully. In the evening time, सबको पता होगा इंसिडेंट, he arranged his own private boat, he put required food material, water, clothes inside it, and he advised him to go to the next island, which is a lonely island, almost submerged in water. तुम उस island पर चले जाओ and wait there until unless you notice a Korean boat or ship. और वो आइलैंड तुम्हारे लिए सेफ है क्योंकि इट इज नॉट वर्थ फोर्टिफाइंग, अभी तक वहां कोई पहुंचा नहीं, फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ उसका, तो वहां इजिली जा सकते हो. द अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 46, द अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग बाय डॉक्टर सादाओ पोर्ट्रेज हिम एज. इसमें सादाओ का कैसा नेचर सामने आया है? सो 46 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट पर्सन. क्वेश्चन नंबर 47, नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग इंडिकेट्स दैट, वो जो जगह है जो लोनली आइलैंड है, इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. यहां पर सदाओ क्या बताना चाहता है? डॉक्टर सदाओ वांट्स टू टेल दैट यू कैन इजिली एंटर दैट आइलैंड. सो 47 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बेटा जिस जगह का फोर्टिफिकेशन हो जाएगा वहां आप जल्दी एंट्री नहीं कर पाओगे, तो लेकिन वो प्लेस फोर्टिफाइंग नहीं हो पाई है, तो आप वहां जा सकते हो. 47 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48, द स्पीकर्स टोन इन द एक्सप्रेशन डू आई हैव टू. इसमें स्पीकर की टोन कैसी है? सो करेक्ट ऑप्शन इज फियर एंड डाउट. देखिए यहां पर फियर भी है, डाउट भी. डू आई हैव जब पूछता है वो, तो फियर भी है, डाउट भी है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, डॉक्टर सादाओ ट्राइज टू एक्सप्लेन. यहां पर कोई स्टॉर्मी सीजन भी नहीं है. यहां पर डॉक्टर सादाओ क्या बताना चाहता है? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉक्टर सादाओ इज एश्योरिंग हिम ऑफ द सेफ्टी. सो 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है. 50, इट इज नॉट हिडन यू आर देयर. बताता है कि डॉक्टर सादाओ टेल्स द व्हाइट मैन, एवरीबडी नोज दिस फैक्ट इज रिवील्ड दैट यू आर स्टेइंग. I have harbored you. I have given shelter to you in my home. तुम यहां पर सेफ नहीं हो. ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है. Because if Japanese soldiers come to know that you are here, you will be caught and mercilessly killed, and I will be also, arrested. Not only arrested, I will be declared as a traitor and even executed. तो यानी 50 बेटा जो ऑप्शन है C is correct. 50 का ऑप्शन C. ये चीज ना तो मेरे लिए अच्छी है ना तुम्हारे लिए अच्छी है. क्वेश्चन नंबर 51, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द लास्ट लेसन. फ्रेंच वॉज अ वेरी क्लेवर, है तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन किया, ही इज नॉट गुड एट स्टडीज बट ही इज वेरी क्लेवर. व्हेन ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान कि स्कूल चलूंगा, वहां पर हशल और बशल होती रहेगी, पैंडेमोनियम होगा, बहुत शोर होता रहेगा, और उसी शोर शराबे का मैं एडवांटेज ले लूंगा. कमोशन इज नॉइज, और मैं क्लास में एंटर कर जाऊंगा और अपने टीचर की डांट से बच जाऊंगा. तो यहां पर जो आया है बेटा 51 में, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज फ्रेंच वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कमोशन. इसका मतलब यह था ही वांटेड टू एस्केप एम हैमेल्स स्कोल्डिंग. 51 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 52, why has the poet Kamala Das brought in the image of spilling children in order to bring a contrast? The poet mentions the images of young trees sprinting, married children spilling out of their homes in order to bring a contrast between the scene inside the car and outside the car. तो यहां पर 52 में देखो C ऑप्शन में है, of bringing in the contrast to the mood of the poet. 52 का C ऑप्शन करेक्ट है. 53, question number 53, from an elementary school classroom in a slum, the stunted, unlucky heir of twisted bones. The poet Stephen Spender explains the condition of Pepper Seeming boy, a very lean and thin boy who was suffering from the disease of genetic disorder. He was inheriting father's null disease. जिस डिजीज से वो सफर कर रहा है, दैट डिजीज इज इनहेरिटेड बाय हिज फादर. तो 53 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनफॉर्चुनेट टू इनहेरिट हिज फादर्स नाल डिजीज. क्वेश्चन नंबर 54,
Select the option that correctly describes Hana as a wife. आप हाना को एज अ वाइफ कैसे देखते हो? रेस्पॉन्सिबल है, लविंग है, केयरिंग है, यही तो है. तो यहां पर देखो 54 में बी ऑप्शन करेक्ट है. When Dr. Sadao went out of the bedroom, Hana did not wish to be left alone with the white man. वो भी नहीं रुकना चाहती थी, वो भी निकल गई बाहर. क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इससे हाना का कौन सा थॉट रिवील होता है? क्या वो व्हाइट मैन से नफरत करती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी लिव्ड इन अमेरिका. व्हाइट मैन आर डेंजरस, ऐसा कोई मेंशन नहीं है. वॉर मेक्स पीपल एनिमी, ये भी मेंशन ऐसा यहां पे नहीं दिखाया गया. हाना इज सेंसिबल है, टिमिड है, कॉशियस है. यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन. सो 55 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर. I think maximum number of students left this question because it was a fault from the side of CBSE because एक error है जिसमें phrase को underline नहीं किया गया. तो by the way, in question number 56, the correct answer given by CBSE is A. But I will not comment on this question because this is an error from CBSE side and I want that CBSE should give one mark to CBSE. I want that CBSE should give one mark to each and every student because अपनी एरर को वो खुद सही करे. तो इस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करूंगा, लेकिन CBSE ने जो आंसर दिया है बच्चे 56 का A, लेकिन मैं कोई कमेंट अभी इस पर नहीं करूंगा. सो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57. द लाइन इज फ्रॉम द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें राइटर कहती है कि nothing has changed in Firozabad. Little has changed. Young men echo the lament of elders. The problem which was faced by their fathers and forefathers, the same problem is faced by the youngsters also. Nothing has changed in their life because they don't want to change themselves. They don't want to see the things differently. तो यहां पर क्या मतलब है इस लाइन का? 57 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट. They are as helpless as their elders. Question number 57, option number C is correct. Question number 58, would put on clean clothes. The poet Pablo Neruda gives a clear message to the warmongers that the warmongers, they should remove unclean clothes and they should wear clean clothes. यहां पर clean clothes का मतलब क्या है? मैंने बताया था क्लॉथ्स रेफर टू आवर हैबिट्स, हमारी जो आदतें हैं, इविल, हेट्रेड, एनिमोसिटी, प्रेजुडिस, हम इनको अबैंडन करें. वी शुड अबैंडन, रिमूव ऑल दीज हैबिट्स एंड वी शुड प्रमोट ब्रदरहुड. वी शुड प्रमोट फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो यहां पर जो क्लीन क्लॉथ्स है, यहां पर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, माइंड विदाउट हेट्रेड एंड प्रेजुडिस. 58 का डी ऑप्शन करेक्ट है कि ऐसा माइंड, लोगों का माइंड ऐसा हो जिसमें कोई हेट्रेड ना हो, एनिमोसिटी ना हो, प्रेजुडिस ना हो. 59, बट द जंप मेड नो डिफरेंस. विलियम डगलस tried his level best to come to the surface, strategy प्लान बनाया, बट जंप मेड नो डिफरेंस. यहां पर क्या है? रिग्रेट. ही रिग्रेट्स. 59 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. These lines are spoken by General Takema, the Japanese general, to Dr. Sadao. Suppose you were condemned to death and next day I had to have an operation. The tone of the general indicates he is. यहां पर जनरल टाकिमा की कौन सी कैरेक्टर ट्रेट्स एग्जिबिट हो रही है? तो याद करिए, जनरल टाकिमा, द जापानीज जनरल, ही वॉज प्योरली सेल्फ सेंटर्ड, प्योर सेल्फिश पर्सन. डॉक्टर सादाओ was rendering his services as the chief surgeon in Japanese army. But General Takema, he never sent Sadao with the army or with the troops in the battlefield. Just for his selfish benefits, he put the life of thousands soldiers on stake. इतना ज्यादा selfish है. He was suffering from such a serious disease. उसको पता है that he might need an operation at any time. He never trusted. There were
so many other surgeons in Japan, but General Takema trusted only Sadao. तो यहां पर उसकी कौन सी कैरेक्टर ट्रेट एग्जिबिट हो रही है? 60 का क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी इज करेक्ट. So I hope that you all have darkened the correct option, and I pray to God that you score outstanding marks in your English subject, in all the subjects in fact. So with this I wish you all the best, and very soon I will back with some more new topics, new videos. Till then, goodbye. Thank you so much.